issue in the today class. Just let me know if there is any issue. Hello, anybody please confirm. Good morning, ma'am. Is it voice audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. So you want today to do little bit more theory or you want to do the programming practice? Because हम दो तीन दिन से सिर्फ programming कर रहे हैं तो बोर तो नहीं हो रहे हो? So should we continue with that or should I change the topic for today? Okay. चलो जी प्रोग्राम शुरू करते हैं हम. Okay, write down all of you. नोटबुक्स हैं आप सबके पास. प्लीज इस क्लास में ना अपने पास एक पेन एंड नोटबुक जरूर रखा करो बिकॉज प्रोग्रामिंग में जब आप खुद करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो आई जस्ट वांट टू फर्स्ट यू ट्राई देन वी विल डिस्कस. तो अगर नहीं है तो प्लीज ब्रिंग योर पेन एंड योर रजिस्टर. देन वी विल स्टार्ट because I'm going to ask you that what you are doing. You all need to show it. Should we start? Ready? Okay. Just write down the statement. Load the number 8BH. I'll also write over here. So, sorry, I forgot to. So screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So write down, load the number 8BH in the register D. Register D में हमें एक value save करनी है 8BH. So this is your register D. I'm again repeating, load the number 8BH in the register D. Then load the number 6FH in the register C. Load the number 6FH in the register C. Increment the content of register C by 1. Increment the content of register C by 1. After that, add the content of C and D. Add the content of register C and D and display the sum on the output port 1. So this we are supposed to do. Any doubt in the question? Should I repeat it? Should I repeat it? Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, quickly I'm repeating. Load the number, this 8BH in the register D. Load the number 6FH in the register C. Then increment the content of register C by 1. C plus 1 कर दिया है. Then add the content of C and D and display the sum on the output port. ये सब चीजें अब हमें ठीक है. एक रजिस्टर डी है उसमें ये वैल्यू पहले आपने लोड करनी है, फिर सी में ये वैल्यू लोड करनी है, फिर इंक्रीमेंट करना है सी के कंटेंट को, देन ऐड करना है दोनों को और फिर आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है. No, please, one by one, anyone. I'm not having. I will not be calling the names now. Just let me know, unmute and let me know which first instruction क्या होगी जब मुझे register D में 8BH value fill करनी है. Anyone? MVI D 8BH. Okay. One by one, please. Yes. So MVI D 8BH.
Yes, it is MVID 8PH because immediate data है, directly हमें given है, उसे हमें register D में डालना है, तो हम क्या लिखेंगे MVI move the immediate value D, sorry 8BH into the register D. आप अपने सिमुलेटर में भी ट्राई कर सकते हो मीन वाइल इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट, अगर आपके पास नहीं है पेन पेन यू कैन डायरेक्टली राइट इट ऑन द सिमुलेटर जो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया होगा होपफुली सबने। सेकंड में क्या करना है, सी में 6FH डालना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या आएगी, मूव इमीडिएट टू सी 6FH, सो आई थिंक इट इज फाइन, सो मूव द वैल्यू इन द रजिस्टर सी। सी को इंक्रीमेंट करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, तो वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ सी बाय 1, सो इंक्रीमेंट के लिए INR C इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं मूव A, A to C. MVI नहीं मूव A मैं मूव A, C. Move A, C. MVI हम सिर्फ जब इमीडिएट डाटा होता है इंस्ट्रक्शन में तब यूज करते हैं, तो जब हमें बिकॉज जब हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, वन ऑफ द नंबर शुड बी इन द क्यूमुलेटर, तो हम एक नंबर को हम D भी ले सकते हैं और C भी ले सकते हैं, तो एक नंबर को उठा के हम एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। तो अब A में वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सो A इज हैविंग नाउ 6FH। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड के लिए इंस्ट्रक्शन Add Sum D. Add D. Add D. yes. तो यहाँ पे ऐड A, D नहीं लिखना, जब आपने ऐड लिख दिया दिस इज ऑलवेज मीन्स कि A एक जो नंबर है दैट इज इन द क्यूमुलेटर, सो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं लिखना, ऐड P, ठीक है, हो गया। अब इसे आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है, एक आउटपुट पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट 1, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन सी है, पोर्ट 1, so this will be complete program, so I think simple programs you can easily do जिसमें आपको कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं और करना है, whatever you want, so I think this is clear। तो ये आप सिमुलेटर पे ट्राई भी कर सकते हो, देन इन दोनों का रिजल्ट क्या आया है अकॉर्डिंगली आपके कौन से फ्लैग डिटेक्ट हुए, यू कैन डू ऑल दोस एनालिसिस, प्लीज डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट प्रोग्राम, मैम वो A में तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए C की। हाँ या सॉरी, हाँ यहाँ पे मैंने इसको, तो इट विल बी योर 6F नहीं होगा, इट विल बी 6F plus 1, तो 6F plus 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 70. 7. Okay, write down the second one. Just hold. Now it will be little complicated one. Now this will be the block transfer of the data byte. Just hold. So next program is the block transfer of data. ब्लॉक ट्रांसफर ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि आपके पास एक मेमोरी का ब्लॉक है, सपोज 2050, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है, सो दिस इज द मेमोरी एड्रेस,
This is the data present over here. It can be anything 01, 0A, 06, 05, 03. जैसे हमने कल numbers ऐड किए थे. तो memory locations क्या होंगे? It will be the consecutive memory locations only 20, 50, 51, 52, 53 and so on. ठीक है. अब ये पूरे ब्लॉक को उठा के हमें एक न्यू जगह पे लेके जाना है. Suppose at 3000 onwards. ठीक है. Means ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा एंड तो ये आपका हो गया सोर्स एंड दिस शुड बी योर डेस्टिनेशन. प्रोग्राम क्लियर है? करना क्या है, कुछ ब्लॉक ऑफ डाटा है जिसमें हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 बाइट्स, वो देख लेंगे हम कितनी बाइट्स हैं, 10 बाइट्स हैं या 20 बाइट्स हैं. तो ये सारा का सारा डाटा उठा के मुझे कंप्लीटली एक न्यू जगह पे शिफ्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये मेमोरी फ्री करनी थी. तो मुझे अब क्या करना है, सारा का सारा डाटा उठाओ और एक नई जगह पे ले जाओ. Statement is clear? Any doubt on this? Now, any idea how we are going to do this? पहले HL रजिस्टर पेयर में डाटा एड्रेस स्टोर कराएंगे LXI इंस्ट्रक्शन के थ्रू. Okay, yes. तो सबसे पहले तो हम HL पे में पॉइंट करेंगे सोर्स ब्लॉक. ठीक है. तो HL में हम सोर्स ब्लॉक का डाटा दे देंगे. अब जहाँ डेस्टिनेशन में लेके जाना उसके लिए भी हमें एक और रजिस्टर पेयर यूज करना पड़ेगा. तो आप BC या DE कोई भी एक ले सकते हो फॉर द डेस्टिनेशन ब्लॉक, इसके एड्रेस को सेव करने के लिए. इतना क्लियर है? एक में हमने ये सोर्स का डाल दोगे HL में और डेस्टिनेशन का एक और रजिस्टर पेयर में एड्रेस डाल दोगे जहाँ पे हमें सेंड कर. और क्या करेंगे, एक टोटल कितनी बाइट्स हमें. हाँ जी, हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इसमें. यस, इनडायरेक्ट यूज करेंगे. लूप लगाएंगे बिकॉज हमें मल्टीपल जो है डाटा वो ट्रांसफर करना है. तो लूप के लिए हमें काउंटर की वैल्यू चाहिए, तो काउंटर के लिए हम एक रजिस्टर में ये वैल्यू को सेव करेंगे. तो ये आप काउंटर ले सकते हो. और एनी अदर थिंग? तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. वी नीड वन सोर्स एड्रेस के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए, और हमें लूप लगाना. सो वी आर रेडी विद द प्रोग्राम. सो लेट्स राइट ऑन द कोड. Can you tell me how to load the HL with the so okay, first thing is हमें क्या given है कि टोटल आपके पास 16 बाइट्स हैं. You can write this. सोर्स आपका जो ब्लॉक है वो है 0050H से लेके 005F. ठीक है, ये हो गया आपका सोर्स. डेस्टिनेशन है हमारा 0070 से लेके 007F. तो ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन. तो यहाँ से मुझे यहाँ ये लेके जाना है विच इज स्टार्टिंग एट 0050 एंड दिस इज 0070. प्री रिक्विजिट्स हमने देख लिए हैं कि एक में हम ये एड्रेस डालेंगे, एक में ये एड्रेस डालेंगे, लूप लगाएंगे एंड देन गेट गोइंग. सो फर्स्ट विल बी द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. नाउ एनीवन? LXI H0050H. ओके, यस. LXI H0050H. तो जब मैंने ये लिखा तो मेरे HL पेयर में क्या आ गया, इट इज 0050. So this is acting as a pointer for the source mem. Same way destination के लिए हम एक और रजिस्टर पेयर ले लेंगे. तो LXI T0070H. So this will be the pointer for the destination. उसके बाद क्या करना है, काउंटर लगाना है. तो उसके लिए कोई भी और रजिस्टर, अब HL हमने यूज कर लिया और DE हमने यूज कर लिया, तो कोई और रजिस्टर आप लोगे. A हम यूज नहीं करते नॉर्मली बिकॉज वो मे बी हमें किसी और इंटरनल ऑपरेशन के लिए चाहिए होगा. सो वी कैन गो विद B एंड C. सो मूव टू D कॉमा क्या आएगी यहाँ वैल्यू 16 के लिए. इट विल बी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16H. 16H नहीं बेटा, 10H. बिकॉज हेक्सागोनल में 10H क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 16. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. आइदर राइट मूव टू बी सिंपल 16 लिख दो अगर H नहीं लिखना आपने, बट अगर 16H लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 16H मीन
It is 16 raised to power 0. This is 16 raised to power 1. So this will be 16 plus 16 raised to power 0 is 1 plus 6. That is, it will be 20. Either write 16 or write 10. Clear? अब हमने काउंटर लगा दिया है। अब हमें क्या करना क्या है, एचएल में हमारे पास डाटा पड़ा है, उसे उठा के पहले हम एक्यूमुलेटर में लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी मूव व्हाटएवर डाटा इज इन एम उसको ए में लेके जाओ, बिकॉज डायरेक्टली हम सेंड नहीं कर पाएंगे, हमें एक्यूमुलेटर के थ्रू करना। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट था वैल्यू वो आपके एक्यूमुलेटर में आ गई। देन एस टी एक्स डी स्टोर दी डाटा प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर इनटू दी डी। एक्चुअल में क्या हुआ, एम से आप, एम मीन एचएल से आप ले गए ए में और ए से फिर आपने डी में शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ये देखो, ये दोनों क्लियर हैं, कैसे कर रहे हैं। Move A comma M means move the content of memory location whose address is in the HL register pair into the accumulator। Actually 0050 का जो डाटा था वो accumulator में आ गया। अब A से हमें D पे सेंड करना है ना, उसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज रजिस्टर पेयर यूज करना है तो H यूज करना पड़ेगा। सो STA मीन्स स्टोर द कंटेंट ऑफ द accumulator into the register pair DE। Sorry, into the memory location which is in the DE register। तो आपका ये 0070 पे चला जाएगा। जितना क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब क्या होगी, अब हमें नेक्स्ट Increment. पॉइंट करना, इंक्रीमेंट। उसके लिए बोलो, इंक्रीमेंट के लिए INXB. INXB। यस, तो इन INR नहीं लिखना, दैट विल बी रॉन्ग। वी हैव टू राइट INXH बिकॉज आपने रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है। सेम वे डेस्टिनेशन को भी इंक्रीमेंट करना है, तो INXT। और क्या करना है, आप इन दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया। इट इज पॉइंटिंग टू 0051, इट इज पॉइंटिंग टू 0071। इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है जो हमारी पॉइंटर थी, सो इट वी विल डिक्रीमेंट इट। सो दिस विल बी DCR डिक्रीमेंट डी। ये अब इसमें 9 हो जाएगा, सॉरी 9 इट इज 15 देन 14। तो ये सारा लूप अब हमें कितनी बार चलाना है, 16 टाइम्स। और जब आपके डी में वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो उसके लिए फिर हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, जंप टिल इट इज नॉट 0। जब तक ये वैल्यू डी की 0 नहीं होगी तब तक हमें लूप के विद इन घूमते रहना है। और लूप का लेबल कहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, दैट इज ओवर हियर, जहाँ पे हमें रिपीट करना। तो जंप इफ नॉट 0 टू नेक्स्ट, जैसे ही वो 0 होगा तो आप एग्जिट कर जाओगे। उस केस में आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगी फॉल्ट। और जब तक ये 0 नहीं होगा, दिस विल कीप ऑन रोटेटिंग विद इन दिस। हर बार नंबर को पिक करेगा और उसको डेस्टिनेशन पे मूव करता जाएगा। हाँ जी, प्लीज चेक दिस कोड इफ इट इज क्लियर। Any doubt in any statement you can ask me, and I will suggest you कि please try to do it on the simulator। सिमुलेटर में आप 16 ब्लॉक्स ले लेना, वहां पे आप अपना कुछ डाटा एंटर कर देना जैसे मैंने आपको कल बताया था। फिर ये कोड लिखना, उसके बाद रन करके देखना कि आपके डेस्टिनेशन में वो कॉपी हुआ या नहीं। So try this for the next thing। क्लियर बेटा? मुझे क्या हो गया? Yes, ma'am. With this, I think you are little bit you're having the practice of all these things. So we will continue that in the next class. Now we will be moving to the back to the theory. So have you heard of the timing diagram earlier? Did we discuss this thing? I think we didn't discuss. Did we discuss timing diagram at any point of time in the class? Or have you heard? No, ma'am. No, ma'am.
सो टाइमिंग डायग्राम में अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारी हायर एड्रेस जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती है, देन एएलई हम यूज करते हैं उनको डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। तो अब मुझे इस चीज को अगर डायग्रामेटिकली जो है एक्सप्रेस करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। So what is a timing diagram? It is the representation of various control signals generated during the execution of an instruction. तो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स आपके जो है वो जनरेट होते हैं। तो these are the main buses which we are going to कि आपकी एड्रेस और डाटा बस में क्या डाटा जाएगा, हायर ऑर्डर एड्रेस बस में क्या डाटा जाएगा, एएलई की वैल्यू क्या होगी, रीड राइट और आईओ में से कौन सा सिग्नल आपका एक्टिवेट होगा। एंड वी विल डू दिस फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। सो लेट्स टेक दिस वन। सपोज मेरे पास इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब है, मूव द कंटेंट ऑफ द बी इनटू द एक्यूमुलेटर। दिस वी नो। सपोज अगर आपने इसको सेव किया है इस इंस्ट्रक्शन को A000H, तो कोई भी एक एड्रेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल एज्यूम भी किया है कि दिस इज दिस एड्रेस। You can assume it to be 2000, you can assume it to be 3000, whatever is your starting address. अब ये चीज हम कहाँ पे लिखते हैं, जब भी मैंने प्रोग्राम लिखना है ना, तो मैं वहाँ पे ORG अगर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट 0000 से स्टार्ट हो। जैसे हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए तो मैंने वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया था स्टार्टिंग एड्रेस, तो बाय डिफॉल्ट विल स्टार्ट राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिस एड्रेस ऑनवर्ड्स। ठीक है, बट अगर मुझे ये किसी और मेमोरी लोकेशन पे जाके लिखना है, सो व्हाट आई विल राइट द स्टार्टिंग एड्रेस ORG 2000। तो अगर मैं ORG 2000 लिख रही हूँ तो ये मेरा 2000 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखनी शुरू करेगा। जैसे अभी हमने की है कि मूव एक be whatever instruction plan. So this is just a simple instruction which they have. अब इसका कोड क्या है, ये अब हमें कहाँ से पता चलता है, move a comma b, this is from the chart। जो हमने बताया था कि एक चार्ट होता है जिसमें सभी इंस्ट्रक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कोड लिखा होगा कि move a comma b जो है उसका कोड है 78h। Now you need not remember it, this is the work of compiler actually। कंपाइलर चेक करेगा इस इंस्ट्रक्शन को, वो इस चार्ट के पास जाएगा, वहां से इसका जो निम्नलिखित कोड है वो पिक करेगा एंड इट विल कम बैक। तो मूव ए कॉमा बी की अगर मैं समरी करूँ तो मेरे पास ये एड्रेस है और ये मेरे पास डाटा है विच इज द कोड फॉर दिस। ठीक है, अब इसका टाइमिंग डायग्राम मुझे ड्रॉ करो। So this is now the timing diagram. टाइमिंग डायग्राम में क्या है, आई एज्यूम कि ये मेरी है डिफरेंट क्लॉक। तो ये मेरी है क्लॉक जिसमें मेरे पास ये T1, T2, T3, T4 मैंने डिफरेंट टी साइकिल्स ले लिए। इसके में टी क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर क्लॉक। तो क्लॉक का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको मैं कह देती हूँ कि दिस इज योर टी स्टेट। ठीक है, तो अब अगर इफ आई हैव राइट हियर नाउ, इस इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये एड्रेस स्पेसिफाई करूंगी, दैट इज A000। अब A0 किस में जाएगा, मेरा हायर ऑर्डर एड्रेस बस में, बिकॉज ये हायर एड्रेस है, और 00 किस में जाएगा, मेरा लोअर एड्रेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मेरी हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, दैट इज AA to A15। ये बाहर लिखते हैं नॉर्मली, ये मैंने अंदर लिखा है, यू कैन राइट इट ओवर हियर। और ये है आपकी डाटा बस, डाटा और एड्रेस बस। तो यहाँ पे पहले मैंने A0 दे दिया। अब बिकॉज ये तो सिंगल है, इसमें कोई और इसका मल्टीपल फंक्शन नहीं है, तो इसमें पूरी के लिए मैंने यहाँ पे A0 दे दिया। सेकेंड 00 देना है वो सिर्फ एक क्लॉक साइकिल के लिए दूंगी, बिकॉज ये जो मेरी लाइन है एड्रेस और डाटा बस ये दोनों के लिए यूज होंगी। तो पहले मैं इसमें एड्रेस दूंगी, फिर मैं इसमें अपना डाटा दूंगी। तो फर्स्ट आई हैव गिवन इट A000। अब बट पता कैसे चलेगा कि एड्रेस दिया या डाटा दिया, तो उसके लिए हमें पता है कि वी हैव द ALE सिग्नल। तो ये ALE सिग्नल को जब आप एड्रेस दोगे उस टाइम पे आप उसको हाई कर दोगे, अदरवाइज आप उसको लो कर दोगे। तो जब मैंने यहाँ पे ये एड्रेस दिया इस लाइन के ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे करके हाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद बिकॉज मुझे इसमें डाटा देना है और डाटा मेरा क्या है 78H, तो ये मैंने 78H देना, तो मैं इसको लो कर दूंगी। So this is how we draw any timing diagram.
तो जितनी देर के लिए आपको एड्रेस और डाटा बस में डाटा है, तो इस सिग्नल को देख के मुझे पता चल जाता है कि मैंने इस मल्टीप्लेक्स जो आपकी एड्रेस और डाटा लाइन है वहां पे डाटा प्रेजेंट है या आपका एड्रेस। If it is high, this means this is the address, and if it is low, this means it is the data. So this is how the microcontroller it checks whether it is address or data. Okay. Now move A comma B. So we have to move the content of B into the A. Actually, what I am doing, I am reading the data from B and I am sending it to the accumulator. तो मैंने यहाँ पे 78H को क्या करना है, रीड करना है। तो इसके लिए आपकी जो लाइन है रीड बार मींस इट विल बी एक्टिवेटेड व्हेन इट इज लो। तो जब आपका डाटा आ जाएगा उतनी देर के लिए सिर्फ आपने इसको लो कर देना है, विच इज फॉर द 2 साइकिल्स। तो 2 टी स्टेट्स के लिए मैंने इसको लो कर देना है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इट इज हाई बिकॉज इट इज अ एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, सेम वे राइट मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे डाटा को तो मैं रीड कर दी, सो इट इज राइट बार, इट विल गो हाई, दिस मींस इट इज नेवर एक्टिवेटेड। अब मैं आईओ डिवाइसेस के साथ मैनेज कर रही हूँ या मेमोरी के साथ, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी ओनली। दिस इज IO/M बार। अगर मेरी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है तो मुझे इसको हाई करना है, अदरवाइज मैं इसको लो कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया लो। तो ये है हमारा टाइमिंग डायग्राम फॉर दिस इंस्ट्रक्शन मूव A कॉमा, जिसमें मुझे ये डिफरेंट जितने भी मेरे एड्रेस और डाटा लाइंस हैं उनको मुझे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर। तो क्या क्या लेना होता है हमें, A8 to A15 सबसे पहले, यहाँ पे एड्रेस एंड डाटा लाइंस, उसके बाद ALE सिग्नल का स्टेटस बताना होता है, देन रीड का, देन राइट का, एंड देन IO/M का। तो ये टोटल सिग्नल जो है हमें इसमें प्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन इट विल बी लिटिल मोर क्लियर टू यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। फिर मैं वापस इस पे आऊंगी कि अब आपको समझ में आया या नहीं। और इसको मैं क्या कहती हूँ, ऑपकोड फेच साइकिल, जहां पे मैंने इस ऑपरेशन कोड को फेच किया आपके प्रोसेसिंग डिवाइस में। सो दिस इज नोन एज ऑपकोड फेच साइकिल। लेट्स टेक द अदर एग्जांपल। If I'm having this instruction MVI A45H, so move immediate to A45H, this means A में मुझे 45H लेके आना। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एड्रेस लिया है A000, नो MVI A45H, नो इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, बिकॉज एक MVI A के लिए कोड होगा और एक जो आपने डाटा दिया है 45 उसके लिए कोड होगा। तो ये 2 लोकेशन लेगा, because since it is a 2 byte instruction, so it will be occupying now the 2 addresses, 2 addresses ले लेगा A000 and A001। पिछला जो था हमारा move A comma B, that was a 1 byte instruction only, इसीलिए सिर्फ हमने एक ही मेमोरी लोकेशन ली, but now we will be taking 2। Let's see the timing diagram for this। तो ये इसका टाइमिंग डायग्राम होगा। A00 में आपका 3E आ जाएगा, विच इज द ऑपकोड फॉर MVI A, और A001 पे आपका आएगा डाटा वट एवर इट इज, सो दिस इज 45। तो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी एड्रेस एंड डाटा लाइंस। तो यहाँ पे हम करेंगे so this is A8 to A15, this is D0 to D7 और A0 to D7 डिपेंडिंग ऑन ALE। तो सबसे पहले मुझे एड्रेस क्या देना है, A000, so this is A000। नेक्स्ट एड्रेस क्या है, A001, so this will be A0 and 0। ठीक है, तो ये हो गया एड्रेस। और जितनी देर के लिए आपने एड्रेस जो है इशू करना है उतनी देर के लिए हम ALE को हाई कर देंगे, फिर ये वापस लो हो जाएगा, फिर जब आप एड्रेस इशू कर रहे हो फिर ये हाई हो जाएगा, एंड देन अगेन इट विल बी। यहाँ पे एड्रेस डाटा क्या देना है, 3E, तो नेक्स्ट टाइम इसमें 3E आ जाएगा। तो A000 फर्स्ट, देन डाटा आया 3E, देन A001 एंड उसके बाद डाटा आया 45। ठीक है, और जब भी डाटा आएगा तो आपका ये इसे हमें लो करते हैं, तो ALE से हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कब इसमें एड्रेस है कब इसमें डाटा है। और ये भी सिर्फ 2 साइकिल के लिए लेता है, उसके बाद ये डैश 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 लिखता है, दिस मीन्स कि नाउ दे आर एम्प्टी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, दे आर एम्प्टी।
अब यहाँ पे हमने इस इंस्ट्रक्शन से डाटा पिक करना है, तो वी विल बी रीडिंग इट। तो रीड बार बाय डिफॉल्ट आपका जो है हाई पे रहता है बिकॉज इट इज एक्टिव लो सिग्नल। द मोमेंट डाटा कम्स इट विल गो लो। जब तक ये डाटा रहेगा तब तक ही ये लो रहेगा, फिर ये हाई पे चला जाएगा जब तक अगेन आपका डाटा नहीं आता, अगेन इट विल गो। सो दिस इज राइट। हमने यूज ही नहीं की इंस्ट्रक्शन, तो राइट आपका एक्टिव हाई पे ही रहेगा। और ये आईओ ऑपरेशन है या मेमोरी ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट है या मेमोरी है, सेंसिटिव मेमोरी ऑपरेशन, सो इट इज IO/M bar होता है, तो इट विल गो दिस इज अ मेमोरी। IO ऑपरेशन कब पे होगा, जब जैसे हमने लिखा था ना आउट टू पोर्ट 1, तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन है आउट पोर्ट 1, उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे अभी जो हमने ये एड्रेसेस लिए हैं, इफ इट इज A0 की जगह आपने 2000 ली है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखोगे, इट विल बी 2000। अगर आपने यहाँ पे 2050 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 and 50, एंड अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिए। ऑफकोड आपका अगर यहाँ 3E की जगह 0A है तो ये 0A हो जाएगा। सेम वे अगर ये 2050 है तो इट विल बी 205। सो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर द इंस्ट्रक्शन। लेट्स टेक अ 3 बाइट, तो तीनों कर लेते हैं, देन इट विल बी then we will take some IO and data write also। तीसरी तरह की इन्होंने इंस्ट्रक्शन ली है LXI AF045H। इसका क्या मतलब है, लोड दी एक्यूमुलेटर पेयर। अब एक्यूमुलेटर पेयर में क्या हो जाएगा, A and TSW रजिस्टर। इट विल लोड दिस रजिस्टर पेयर विद दिस वैल्यू। तो LXI A का ऑपकोड क्या है, दिस इज 21। F045 को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, फर्स्ट दी लोअर एड्रेस देन दी हायर एड्रेस। तो पहले हम 45H लेंगे, देन हम F0। सो दिस इज अ, बिकॉज दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो हमारे टोटल कितनी मेमोरीज हमने कंज्यूम की, 3। अगेन दिस इज assumed only, you can have anything, you can have 2000 over here, so then it will be 2000, 2001, 2002। Let's check the timing diagram for this now. Now this is the, अब आपका यहाँ पे ये कितने सारे टी स्टेट्स बन जाएंगे, बिकॉज पहला आपने ऑपकोड को फेच किया, फिर आपने मेमोरी को रीड किया, फिर आपने मेमोरी को रीड किया, बिकॉज वी आर पिकिंग दिस डाटा। चलो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने ये ऑपकोड फेच हुआ आपका, बिकॉज दिस इज LXI। So this is output fetch। F045 क्या है, दिस इज योर डाटा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डाटा को रीड कर रहे हो, सो यू आर फेचिंग द डाटा। तो यहाँ पे आपके पास साइकिल्स कितने हो जाएंगे, T1, T2, T3, ये आउटपुट फेच साइकिल हो गया। देन मेमोरी को रीड कर रहे हो, फिर मेमोरी को रीड कर रहे हो। एड्रेसेस हमने क्या के लिए, A000, A001, A002, और डाटा क्या था वहां पे 21। तो ये इसी ऑर्डर में लिखना है, दिस ऑर्डर में था 21, 45 एंड F0। 21, 45 एंड F0। तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे F0 लिख दिया और यहाँ पे 45 लिख दिया, इट इज रॉन्ग देन। ठीक है, तो पहले लोअर एड्रेस देन हायर एड्रेस। जहां जहां पे आपका ये एड्रेस है वहां वहां पे हम ALE को हाई कर देंगे। सो दिस इज ALE हाई ओवर हियर, अगेन हाई ओवर हियर, अगेन हाई ओवर हियर। देन जहां जहां पे आपके पास डाटा आ रहा है वहां पे आपका रीड साइकिल लो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये रीड लो हुआ, अगेन इस डाटा के ऊपर लो हुआ, यहाँ पे लो हुआ। अगेन राइट हमने कुछ नहीं किया, वी आर जस्ट रीडिंग, तो राइट आपका हाई पे ही रहेगा। दिस इज हाई, this is IO/M bar, again this is a memory operation only, so this will be IO/M bar। So I hope little clarity is there how we are doing this thing। हाँ जी, क्लियर हुआ ये। राइट वाला जब आप मेमोरी के ऊपर जाके डाटा लिख रहे हो, मीन्स या तो आप किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर लिख रहे हो, या फिर जैसे मुझे किसी मेमोरी में डाटा लोड करना, यहाँ पे तो मैं सिर्फ मेमोरी से डाटा पिक कर रही हूँ ना,
बट अगर मुझे मेमोरी में जाके डाटा को स्टोर करना है, जैसे हमने डाटा ट्रांसफर वाला किया है ना, तो डाटा ट्रांसफर में जो आपकी इंस्ट्रक्शन है STAXD थी, जो जहां पे आप स्टोर दी डाटा पिक्ड इनटू दिस, तो वो आपका मेमोरी राइट, जहां से हमने एक ब्लॉक से डाटा पिक किया, यहाँ से रीड किया और यहाँ पे जाके राइट किया, तो दिस विल बी द डाटा। उसके लिए भी हम एग्जांपल्स करेंगे, तो उसके जो है आपका ये जो टाइमिंग डायग्राम है वो कैसा रहेगा। So first we are doing this for the simple instruction. इतना क्लियर है बेटा? Any doubts in this? मैम ऑपकोड फेच करने के बाद लाइक इन दिस वन डायग्राम 7EH के बाद एम्प्टी क्यों दिखाता है वो? एक मिनट, यहाँ पे ये वाला, ये क्या है? यस मैम। क्योंकि देखो जब आपका ये हमेशा ही हम अपनी एड्रेस और डाटा लाइंस को ऑक्यूपाई नहीं रखते, जैसे ही आपका डाटा रीड हो गया, अब हमने यहाँ पे डाटा रीड कर लिया, उसके बाद हमारा इस पर डाटा रखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए फिर हम उनको ट्राई स्टेटमेंट भेज देते, उनको खाली कर, ठीक है। सो जस्ट कीप दी कि आपका नेक्स्ट इसके साथ ओवरराइट ना हो, तो हम इसको क्लियर कर, इट गोज इनटू दी योर एम्प्टी स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। एक्चुअली एम्प्टी भी नहीं होता, बिकॉज एम्प्टी का मतलब तो क्लियर करना हो गया, तो इनएक्टिव हो जाता है, बिकॉज आपका काम तो यहीं पे खत्म हो गया, यहाँ पे आपने एड्रेस पिक कर लिया, यहाँ पे आपने उसको रीड कर लिया, आफ्टर दैट देर, तो 2 साइकिल्स में ये काम कंप्लीट होता है, तो एक के लिए ये इनएक्टिव स्टेट। दिस इज द इन द डिजाइन ओनली ऑफ द नेटवर्क, तो डिजाइन ही ऐसा किया गया। क्या मैम? एनी अदर डाउट? किसने? नहीं देखो, ALE का क्या काम है, ALE जो आपका सिग्नल है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि ये आपकी जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा लाइंस है AD0 से लेके AD7 तक, यहाँ पे एड्रेस प्रेजेंट है या डाटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने सिर्फ जब आपके पास एड्रेस है आपने इसको हाई कर दिया, और जब आपके पास डाटा है आपने इसको लो कर दिया। हाँ हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको भी यहाँ पे वो कर देना चाहिए था? नहीं, मतलब हाँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसको क्यों नहीं किया, बट डाटा बस को वो क्लियर कर देते हैं। बट ALE जो सिग्नल है, बिकॉज मे बी इसका ये सिग्नल है कि ALE का फर्दर कोई फंक्शन नहीं है, ALE का सिर्फ यही फंक्शन है एड्रेस और डाटा का, बट डाटा के लिए हो सकता है वी नीड इट फॉर सम अदर सर्विस, तो इसलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं, बट ALE को हम ऐसा रहने देते हैं, और ये सिर्फ इसी में होता है। बाकी कहीं पे भी देखो, अगर आप IO या M बार है, तो वहां पे भी हम किसी को भी इनएक्टिव स्टेट में नहीं भेज रहे, ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स वाली एड्रेस या जो डाटा लाइन है वहीं पे हम यूज करते हैं। क्लियर? एनी अदर डाउट? मैम ये जो डेटा बस है ये वाली लाइन, मैम इसमें एड्रेस का जो साइकिल है मैम वो एक साइकिल में हो जा रहा है, और मैम ये डेटा का 2 में हो रहा है, मैम ये क्यों? ये तो बेटा इसका मतलब डिजाइन ही ऐसा किया उस टाइम पे, बिकॉज आपको डाटा को पिक करना है, तो इस चीज का कोई रीजन नहीं है कि ये T1 ये 2 साइकिल्स क्यों ले रहा हो, ये 1 साइकिल, इट इज डिजाइन लाइक दिस। एड्रेस Okay, जो मैम। है वो देयर इज नो लॉजिक। Any other? So those who are not having any doubt, they can leave.